Okay, good morning to all of you. Let's start. Chapter number 4, Unit 2, Lecture 3rd. Lecture 1 and 2 we have already done, and today is to 23rd March 2022. Okay, today we are going to learn converting an objects. Okay, converting an object means converting a object into a table. We will use as dot table command. Okay, we are going to use as dot table command. For matrix, suppose we want to convert a matrix into a table, so just use the command as dot table. But if you want to change a data frame into a table, then first you have to change data frame into a matrix, then you can use command as dot table. So I am going to give you an example over here. mf is equal to read.csv file.choose. This is the command to generate a data frame. All of you know very well read.csv is for to read csv file, and file.choose command is for to choose any file from the directory. So I am going to run here, and here I already made a file named as mf. So I am going to select mf file and open it. Now, how the MF data looks like? This is the MF data looks like. First, uh, first column is of length. Second column is of speed. Third is LG. Fourth is NO3, and the fifth is BOD. Okay. Now, suppose we want to see the class of the MF, that will be data frame. And if we want to change now MF into a table, if we use as dot table command directly to the mf, which is a data frame, we will get an error like this. So what we have to do, we have to first use as dot matrix command over the mf to change mf into a matrix. Then we will apply as dot table command over it to get a table from the mf. Then we will get a table. Okay, so this is the another example. Grass.1 is equal to list m mau is equal to c 12 15 17 11 15 and mau 8 9 7 9. This is the way how you can create a list. Okay, if you want to create a list, then you have to follow this way. So suppose grass.1, I run it, so we will get a list. And the grass.1, the data of grass.1 looks like this. Mau contain this data, and nmow contain this data. If you want to see the class of grass.1, so class will be as a list. Okay, now suppose you want to change a list into a table. What is the way? The way is, in this case, list first use stack to convert in the right form, then convert in a matrix, then find table. Okay, so first you have to use stack command over the list. This is the grass.1 is the list. This is your list. Okay. So first you have to use stack command over the grass one. Then you have to convert it into a matrix. Then you will use as dot table command if you want to convert a list into a table. Okay. So I can give the variable gr.tab, जिसमें लिस्ट ग्रास वन कन्वर्ट होके टेबल में स्टोर हो जाती है gr.tab में. ओके, मैं इसको रन करता हूँ. उसके बाद gr.tab को मैंने कॉलम्स को नाम दे दिया SPP एंड ग्रेज. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम नाम दे रहे हैं गिविंग नेम्स टू कॉलम्स. ओके, हम इसमें कॉलम्स को नाम दे रहे हैं.
एसवीपी और ग्रेस। और नाउ जी आर डॉट टैब कैसा लगेगा, ये देखिए जी आर डॉट टैब हमारा जो कन्वर्ट होने के बाद टेबल में इस तरीके का आएगा। फर्स्ट कॉलम विल बी एसपीपी, सेकंड कॉलम विल बी ग्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी लिस्ट को किसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले स्टैक कमांड, देन मैट्रिक्स कमांड, देन टेबल। So if you want to convert a matrix into a table, you know. If you want to convert a data frame into table, now you also know. If you want to convert a list into a into a table, then also you can do. Now next topic is testing for table objects. ठीक है, टेस्टिंग करेंगे। जैसे बर्ड हमारा एक ऑलरेडी इंस्टॉल हमने किया हुआ है वेरिएबल सेव, तो क्लास देखते हैं बर्ड की, दैट इज टेबल। ठीक है, क्लास ऑफ बर्ड इज नाउ टेबल। तो आई एम गोइंग टू चेक कि बर्ड इज टेबल और नॉट। तो व्हाट इज द command is dot table. Is dot table is telling you that bird is a table or not. How? True. If you it give you true command, then it is a table. If it is give you false command, then it is not a table. जैसे सपोज यू वांट टू चेक ये क्लास और जी आर डॉट टैब की क्लास आप जानते हो क्या है, टेबल। आप इस पर अप्लाई कर दे तो इज डॉट टेबल जी आर डॉट टैब, तो इस पर आ गया ट्रू। दैट मीन जी आर डॉट टैब इज आल्सो ए टेबल। नेक्स्ट, और यू कैन यूज द फॉलोइंग मेथड टू टेस्ट द टेबल। एक तो मेथड ये है कि आप इस डॉट टेबल कमांड का यूज करें, या फिर दूसरा मेथड है आप इफ एल्स का यूज करें। इफ एल्स में क्या होगा, इफ लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे क्लास ऑफ जी आर डॉट टैब इक्वल टू टेबल, देन गिव यू ट्रू, अदरवाइज गिव यू फॉल्स। दिस इज द अनदर वे टू चेक द गिवन वेरिएबल इज टेबल और नॉट। ओके, तो आई रन इट, it is true, so that means gr dot tab is a table. Now we are going to make flat contingency table. Again I am assigning pw dot read, pw में मैं assign कर रहा हूँ read dot csv file dot choose. It is a way to create a data frame, and I am going to choose here pw height plant water file. Okay, so let's choose where is pw. Here pw height plant water, and I open it. Now how the data of pw looks like this way. Okay, first column is height, second is plant, third is water. First column height is a numeric vector, plant is a again character vector, and the third water is the also character values. The class of pw obviously a data frame, class of pw is data frame. Table of pw, now हम pw की टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर एज डॉट टेबल। ओके, तो ये हमने टेबल बनाई, pw गिव 3 टेबल्स। व्हेन हम pw की टेबल्स बनाते हैं तो हमें 3 टेबल मिलती हैं। कैसे? प्लांट हाइट, एक कॉलम हाइट का, प्लांट वाटर का इसने हाई ले लिया, और हाई के साथ जो जो वैल्यूज थी उसके साथ हमें एक एक टेबल दे दी। फिर वाटर के लो के साथ जो जो वैल्यूज थी उसके साथ दूसरी टेबल दी। फिर वाटर के मीडियम के साथ जो जो वैल्यू थी उसके साथ एक टेबल। सपोज you want all 3 tables in one table, what command you will use? You will use f table. Okay, when you use f table command you will get single table. देखो, first is height, second is plant, third is water, high, low, medium, इस तरीके से। ठीक है, तो you will get single table over here.
और यू कैन यूज द फॉलोइंग कमांड। इसके लिए आप ये फॉलोइंग कमांड का भी इसमें यूज कर सकते हैं। क्या है कमांड? विद pw f टेबल हाइट प्लांट वाटर, सेम टेबल आपको मिलेगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है विद pw f टेबल हाइट प्लांट हाइट वाटर प्लांट। सपोज आप जो आपका कॉलम है उसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलम वाटर की जगह प्लांट, प्लांट की जगह वाटर, तो वो भी आप कर सकते हो जस्ट राइटिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर प्लांट, ये हो गया आपका हाइट वाटर प्लांट, हाइट यहाँ आ गया, वाटर यहाँ आ गया और प्लांट यहाँ। पहले क्या था? हाइट यहाँ था, प्लांट यहाँ थे और वाटर यहाँ। तो जैसा आप चाहें वैसा आप। नेक्स्ट, एफ टेबल प्लांट इक्वल टू हाइट प्लस वाटर डेटा pw, ये भी आप एक तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें आपके पास क्या है, कैसी टेबल आएगी? देखो इसमें आपके पास जो लेफ्ट में लिखा है प्लांट, प्लांट आपका यहाँ आ जाएगा और हाइट प्लस वाटर ये एक साथ आ जाएंगे और प्लांट यहाँ। नेक्स्ट वाले को रन करते हैं तो हाइट प्लस प्लांट यहाँ आ जाएगा और वाटर आपका यहाँ आ जाएगा। देखते हैं क्या ऐसा ही होता है या कुछ हो। ये देखिए हाइट और प्लांट यहाँ आ गए और वाटर यहाँ आ गए। तो सिमिलरली थर्ड को करेंगे तो हाइट और प्लांट जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा और ये जो हाइट है वो आपका यहाँ वाटर की जगह। देखो प्लांट एंटर करके ये देखिए, तो आपने देखा कि ये जो वाटर और प्लांट है दैट इज कम्स हेयर वाटर एंड प्लांट, एंड ये जो हाइट है दिस कम्स टू यू हेयर। तो अनदर एग्जांपल्स, gr.t, सपोज हमने ये जो टेबल बन के आई है हमारी एफ टेबल फ्लैट टेबल, वो हमने gr.t में असाइन इस बार करा दी। तो gr.t में क्या असाइन हुआ? ये असाइन हुआ, देखो हाइट वाटर और ये हमारा प्लांट। इस तरीके की टेबल हमारी gr.t में असाइन। अब सपोज आप क्या चाहते हो, आप सिर्फ gr.t की फर्स्ट 3 रोज देखना चाहते हो, पूरा ना देख के फर्स्ट 3 रो। तो आप सिर्फ क्या लिख देंगे, 1 बिग ब्रैकेट के अंदर 1 कॉलन 3 कॉमा, तो इससे आपको सिर्फ 3 रो आ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड। ओके, वो फर्स्ट 3 रोज यहाँ पर आ जाए और gr.sub में ये हमने असाइन करा दिया यहाँ पर यही टेबल। तो gr.sub की क्या हुआ, ये वैल्यूज आ गई gr.sub। तो एक टेबल में से अगर आपको एक पर्टिकुलर छोटी सी टेबल बाहर निकालना चाहते हो तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दैट। कॉल नेम्स, इसके कॉलम्स के नाम दे सकते हैं कॉल नेम्स कमांड के थ्रू। रो नेम्स कमांड के थ्रू रोज को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हाई लो मिड दिया है और कॉलम्स को स्टेविया एंड वुलग्रियस दिया है, तो ये हमने दिया। अब आप देखो इसको मैं रन कराता हूँ तो कॉलम और रो दोनों के नाम आ जाते हैं, ये देखिए दोनों के नाम यहाँ पर। और यूज फॉलोइंग कोड, या फिर आप ये भी कोड यूज कर सकते हैं जैसे हमने ये 3 दिया है, 1 लाइन, सेकेंड लाइन एंड ये थर्ड लाइन, इन तीनों को मिलाकर आप एक साथ भी एक लाइन में लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मैट्रिक्स gr.t 1 कॉलन 3 कोमा एंड कॉलम इज इक्वल टू 2 डायमेंशन नेम्स, हमने ये लिस्ट पहले रो के नाम लिख दिए फिर हमने कॉलम्स के नाम लिख दिए। इस तरीके से हमने रन करा दिया। अब आप देखो gr.sub में क्या आ गया, ये सेम चीज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न मेकिंग सेलेक्टिव फ्लैट कंटिजेंसी टेबल। अब हम सेलेक्टिव फ्लैट कंटिजेंसी टेबल मतलब सेलेक्टिव बनाएंगे। फ्लैट तो हम बना चुके, फ्लैट टेबल, तो अब सेलेक्टिव, क्रिएटिंग सेलेक्टिव फ्लैट कंटिजेंसी टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I as creating a data frame pw read.csv, same file I am going to choose pw height file, pw वाली, ये this one file I am going to use here।
and this is the data looks like. Again, this is the data. First is height, second is plant, and third column is of water. Suppose we want to see the class of PW, then the class PW will give you data frame. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, फ्लैट कंस्टेंट फ्लैट टेबल से सेलेक्टिव पार्ट को सिलेक्ट कर, मींस विद क्या कर रहा है, विद पीडब्ल्यू का डेटा एफ टेबल में से जो हाइट इक्वल टू 14, जिसकी हाइट 14 है, सिर्फ वो वाला डेटा आउटपुट के रूप में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें रन करता हूँ तो ये सारा का सारा उसका आ गया, जिस जो डेटा जो है ये डेटा है जब हाइट आपकी 14 है, फिक्स है। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट 14 एंड वाटर हाई, तो इसमें हाई वाटर वाला ले लेगा ये, जैसे ये हाई है ना, ये हाई वाटर, तो हाई वाटर ले लेगा, और फिर ये हाई वाटर, ये वैल्यूज हमें यहाँ पर ऐसे आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिलेगी। ये देखो, तो ये हमें ऐसे आउटपुट मिली हाई में, फॉल्स का ये हो गया, ठीक है, और ये आपका ट्रू वैल्यूज हो। तो इसे ऐसे सब टेबल के रूप में यहाँ पर मिल गया। तो इसमें जब वाटर आपका हाई है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो कमांड pw.t इज इक्वल टू pw विच हाइट विच pw डॉलर हाइट इक्वल टू 14। ठीक है, आप ये वाली कमांड ये वाली कमांड यूज करें या फिर ये वाली कमांड यूज करें, आंसर विल गिव यू द सेम। तो pw.t, दिस इज द pw.t जब आपका हाइट 40। ओके, पहले वाले में विद के केस में क्या हुआ, आपको 1001 के रूप में टेबल मिला। अब यहाँ pw.t में क्या हुआ, जब आपने विच कमांड का यूज किया तब आपको एक सिंपल टेबल के रूप में यूज। तो इस डिपेंड्स ऑन कि आप विच कमांड का यूज करें या विद कमांड का, जो आपको मन करे। दोनों ही सेम टेबल देते हैं, बट उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। pw.t की क्लास अगर देखना चाहते हैं तो दिस इज द डेटा फ्रेम, ओके, विद pw.t f टेबल हाइट प्लांट वाटर। ओके, तो इसकी एफ टेबल बना दी, pw.t जो आपके पास है उसकी इन्होंने एफ टेबल बनवाई। तो दिस इज द एफ टेबल, फ्लैट टेबल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज समरी कमांड ऑन द contingency table. Next line, we are going to introducing matrix. Okay, in next lines we are going to introducing matrix. This matrix you already taken as a input many times, but just for revision I am going to explain again. This is the blackbird, chaffinch, great tit, house sparrow, robin, songsters. These are the vector, numeric vector. Now bird name for rows, bird name for columns. This is the character vectors. Now MATR. Okay, I am going to assigning all these vectors, all these numeric vectors into MTR. Now bird में हम क्या कर रहे हैं, MTR को एज ए मैट्रिक्स असाइन कर रहे हैं बर्ड में विथ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 5। तो बर्ड इज लुक्स लाइक ऐसे आउटपुट दिस। अब रो नेम्स बर्ड इक्वल टू बर्ड नेम फॉर रोज के थ्रू हम इसके रोज को नाम दे रहे हैं। कॉल नेम बर्ड में बर्ड नेम फॉर कॉलम्स के थ्रू इसके कॉलम को हम नाम दे रहे हैं। तो ये हमने नाम दे दिया। अब बर्ड को हम देखेंगे तो हमें देखिए विद नेम्स मिल जाएगा। क्लास ऑफ बर्ड विल बी मैट्रिक्स रो सम्स ऑफ बर्ड। ये बर्ड मैट्रिक्स के रोज का सम हो करके आपको मिल जाएगा। यहाँ ध्यान देना रो सम्स में एस कैपिटल है, ठीक है, सो स्मॉल नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज ए कमांड अप्लाई bird to sum. Apply is a command which has three
in points here. First one will be object name. You have to write object name like bird here. Second will be margin. So margin will be 1 or 2. And third is the formula, whatever you want. So product you want, sum you want, subtraction you want, anything, whatever you want. So for suppose I want here sum. ठीक है, तो I have written here sum. What is the meaning of 2? So margin 1 is for row, 2 is for column. If we write 1 here, that means it operation, some operation will be apply over rows. If I write 2 here, the sum column will be apply, sum will be apply over the column. ओके, तो ये सम हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा ओवर द कॉलम। तो ये हमें कॉलम्स का सम दे रहा है। देखो कॉलम के नाम क्या आते हैं, गार्डन, हेड, ग्रीव, एटसेट्रा। तो वही चीज यहाँ पर हमें ऐसे कॉलम में आउटपुट यहाँ पर मिलती है। ओके, कहाँ पर थे, हाँ इस लाइन में थे। नेक्स्ट है मार्जिन डॉट टेबल बर्ड। मार्जिन डॉट टेबल इज यूज टू गेट ओवरऑल सम। सपोज आप पूरे मैट्रिक्स का एक साथ सम जाते हो तो उससे just use margin dot table bird. So this will give you overall sum of the matrix. If you write margin dot table bird comma 1, so this will give you the sum of rows. If you write down margin dot table bird 2, it will give you the sum of columns. Prop dot table bird. Prop dot table command, prep dot table command used to display the table data as a proportion of the total sum. ओके, जैसे ये आपके पास है और टोटल सम हमारा क्या आया था, हमारा देखो टोटल सम हमारा आया था ये 295। तो 295 में तो ये हमें आउटपुट क्या बता रहा है कि 295 में किसने कितना सहयोग किया है, कितना इसने अपना प्रोपोर्शन दिया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना पोर्शन 295 में इतने परसेंट पोर्शन इसका है। ओके, फर्स्ट वन का। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ जीरो है, कहीं टेबल में ये जीरो है, तो सम में जीरो का प्रोपोर्शन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया सम में जीरो का प्रोपोर्शन इज जीरो। और ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 47। तो 47 का प्रोपोर्शन टू द सम, टोटल सम इज 0.1593220034। ओके, so this is the meaning of this one. If you write down prop dot table bird comma margin is equal to 1, this means used to display the table data as a proportion of total, okay, total to, ओके। तो इसको रन करते हैं, ये देखिए ये आपके पास निकल के आ गया। तो ये हमें क्या बता रहा है, आपने जैसे ही यहाँ पे वन रख दिया, प्रपोज टेबल कमांड यूज टू डिस्प्ले द टेबल डेटा एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल ऑफ रोज टोटल। रो के टोटल में उसका कितना प्रोपोर्शन है वो वहां पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न क्रॉस टेबुलेशन। ओके, क्रॉस टेबुलेशन, let's see what is a cross tabulation. First I am going to create a data frame named as birds. Matrix is bird, this is birds. So birds species habitat quantity. So I am going to take here a file which I have already saved, this one. So how looks like birds? The data of birds looks like this. First is species, second is habitat, third is quantity. Okay, so let's we want to see the class of birds. The class of birds is data frame.
ठीक है, वी वांट टू मेक ए सिंपल टेबल, जस्ट यूज द with command birds table species habitat, so it will give you a simple table with taking the two columns. This is, and another will give you the another simple table, but here is the three columns, so we will get two tables. Okay, like this. Okay, it give you many tables. Now, or you can use the flat table. This will give you only one table. You see, this is the way how you it will looks like. It will give you just one table. If we want original data into a table instead of 0 or 1, here the data is coming in 0 and 1, and we want original data. What we will do? We will use the command xtabs. Create a table with original data. Syntax is xtext frequency data tilde categories list and data is equal to data objects. Here मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. तो अगर आप ओरिजिनल डेटा चाहते हैं तो यू हैव टू यूज द कमांड xtabs. Okay, then okay, you have to use the command xtab. Then you have to write this quantity tilde species plus habitat, means here what you want here and what you want here, you have to write down, give instruction over here. डेटा इज इक्वल टू कौन सा डेटा चाहते हैं, बर्ड का चाहते हैं. तो देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, तो वो किस में सेव हो गया, बर्ड डॉट टी में. अब मैं बर्ड डॉट टी का आउटपुट निकालता हूँ, तो दिस इज द बर्ड डॉट टी विद द ओरिजिनल डेटा. ठीक है, टेस्टिंग क्रॉस टेबल एक्सटॉप ऑब्जेक्ट्स. तो क्लास ऑफ बर्ड्स डॉट टी, the class of bird dot is x tabs. Now if वही if else वाला, if class of bird dot t equal to x tab, then it will give you true, otherwise it will give you false, but it will give you an error message. ठीक है, तो for x day it will give you an error message. So what do you, how you will do? The right way is you have to use this way, you have to write this way. Means what is the difference? Difference is you have to use any command. Okay, if you use xtab and you want to check if bird.t is xtab or not, you have to use any command, then it will give you a better answer, true or false. Okay, so now I run it, so it will give you true, yes, bird.t is xtab. A better class test, use class or is or inherits. ओके, तो आप अगर क्लास टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कमांड कौन कौन सी है, क्लास के थ्रू कर सकते हैं, इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, और इनहेरिट्स कमांड के थ्रू कर सकते हैं, वट एवर यू वांट. रिक्रिएटिंग ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द कंसिस्टेंसी टेबल. ठीक है, bird dot t, this is the bird dot t. Class of bird dot t, the class of bird dot t is x steps. Okay, as dot data dot frame, हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, हम इसको क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट, तो हाउ यू विल कन्वर्ट, यू विल कन्वर्ट इट लाइक दिस. Then your data frame will looks like this. But point is that here is the frequency. The name you have given in the bird.t is quantity, and it is taking frequency. So remember this one. So how you will get, if you want to get quantity here, then you have to use responsive name quantity. Okay, then you will get.
same name. So this is the same name. Now quantity will be there, not a this one frequency. Now suppose you want to suppose you want to uh, remove zeros from the डेटा डेटा से जितनी भी जीरोस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो है, ये जीरो है, यू वांट टू रिमूव दैट वन. व्हाट यू विल डू फॉर दैट? फर्स्ट कन्वर्ट योर एक्स टैब इनटू ए data frame which I am going to store here, birds.td. So birds.td I am going to run. The output of birds.td will be looks like this is a data frame. Okay, now switching the class. तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें? birds डॉट टी डी इज इक्वल टू birds डॉट टी डी विच birds डॉट टी डी डॉलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो. केवल वही चीज अब birds डॉट टी डी में आ जाए. birds डॉट टी डी की वे वैल्यूज स्टोर हो जाए birds डॉट टी डी में जो ग्रेटर देन जीरो है, बाकी जीरो वाली लीव हो जाए. ये मैंने रन करा दिया, birds डॉट टी डी को रन करा दिया. तो अब आप देखो इसकी जो वैल्यूज थी, जो जीरो थी, वे सब हट गई और जीरो नहीं है वो सब यहाँ पर आ गई. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको जीरो हटानी है तो कैसे हटाएंगे? स्विचिंग क्लास. अब हम क्या कर रहे हैं? क्लास को स्विच कर रहे हैं. स्विच करने से मतलब क्या है आपका? स्विच करने से मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में हम करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड है, हमारे पास है. बर्ड की क्लास क्या है? बर्ड की क्लास इज मैट्रिक्स. क्लास ऑफ बर्ड इक्वल टू टेबल. तो अब बर्ड की क्लास क्या हो जाएगी? टेबल हो जाएगी इस लाइन के बाद. अब मैं क्लास देखूंगा बर्ड की तो दैट विल बी टेबल. ओके, bird डॉट df इज इक्वल टू एच डॉट डेटा डॉट फ्रेम bird. जैसे bird डॉट df में मैंने इसको असाइन कर दिया, तो bird डॉट df कैसा लगेगा? ऐसा होगा. और क्लास ऑफ bird डॉट df की क्या हो गई? ये हो गई डेटा फ्रेम. तो बर्ड जो कि एक मैट्रिक्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में. तो इस तरह आप क्लास को भी बदल सकते हैं. इन अबाउ bird डॉट df वी गेट डिफरेंट हेडर नेम. ठीक है, बट हम यहाँ पर डिफरेंट हेडर नेम लेंगे. जैसे यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है क्वांटिटी की बजाय. ठीक है, तो नेम्स हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं. हमने यहाँ पर इसके थ्रू आप अपना नेम्स भी चेंज कर सकते हैं. आप वही ग्रेटर देन जीरो चाहते हो तो ग्रेटर देन जीरो, और ये बर्ड डॉट जीरो, तो इससे हमें ग्रेटर देन जीरो मिलेगा. तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है. किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए. ठीक है, डिस्कस कीजिए.